اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں انسان کے اندر بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو دنیا کی تمام چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ انسان کے اندر بہت سے بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اندر، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، یہ زبان، یہ کان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اس نعمتوں کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کا پورا ڈاکٹری کا علم میں لگی ہوئی ہے اور یہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو نئے نئے ٹیکنالوجیاں ایجاد کر رہی ہے اور دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود بھی وہ آج اللہ کی نعمتوں کو مکمل صحیح طور پر کمپلیٹ سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکے۔ یہ آنکھ اتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، اس آنکھ سے ہم پوری دنیا کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ میں بینائی نہ دیتا، روشنی نہیں دیتا، یہ چمکتی دھمکتی دنیا، روشن دنیا ہمارے سامنے اندھیرا تاریک بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج نعمت کو، آج آنکھ کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹرز اپنی پوری زندگیاں اس میں لگا رہی ہیں، مگر مکمل تفصیلات ان کے سامنے نہیں ہیں۔ یہ دانت کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اپنی پوری زندگیاں اس میں کھپا رہی ہیں، یہ چھوٹے سے دانت کو۔ یہ اگر دانت نہ ہوتے تو انسان کا چہرہ کتنا خراب دکھتا تھا۔ اگر آرٹیفیشل نقلی دانت لگاتے وہ اس میں اتنی مضبوطی طاقت نہیں ہوتی جیسے جو قدرتی طاقت ہوتی ہے۔ ہر چیز ہم اس سے چبا کر کھا لیتے ہیں غذائیں، وہ قدرت کی طاقت نہ ہوتی، اس میں کمزوری رہتی، مضبوط نہیں ہوتے وہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کان ہے جو اس میں ڈاکٹر پر اپنے غور و فکر کر رہے ہیں، اس میں زندگیاں لگا رہی ہیں، مگر مکمل تفصیلات کو نہیں سمجھ سکے۔ دل انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، پارٹ ہے، اس کی تفصیلات کو سمجھنے انسان کوشش کر رہے ہیں، کئی انسان اس میں پڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں، اس میں زندگیاں لگا دی ہیں اس کے اندر، مگر مکمل تفصیلات کے سامنے نہیں آئی۔ ایک وقت تھا جب ہارٹ اٹیک کو ایک بیماری سمجھتے تھے، جب ان کے سامنے تفصیلات سامنے آتی گئی، جیسے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کہے گا کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوں، مگر اس کی بیماری کا علاج فلاں برانچ سے تعلق رکھتی ہے، آپ فلاں جگہ چلے جائیے، یہ کہتے ہیں۔ اتنی اس کو تفصیلات کو سمجھ نہیں سکے ابھی۔ یہ چھوٹا سا دماغ ہے، اس دماغ کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے انسان لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس کے سمجھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، میں اس کی مکمل تفصیلات کو نہیں سمجھ سکے۔ انسان کے دماغ سے جسم کے اعضاء تک اس کے سگنل جاتے ہیں دماغ سے، انسان کے دماغ سے جو یہ بجلی کے کمزور سگنل ہوتے ہیں، یہ دماغ سے نکلتے ہیں اور جسم کے دیگر اعضاء تک یہ سگنل جاتے ہیں اور پورے اعضاء کو، پارٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ جیسے اصل میں یہ ہمارے اندر ایک وائرنگ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے گھر کے اندر ہم بجلی کی وائرنگ کروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر رگوں کی وائرنگ کر رہی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، اس کی تاریں کتنی استعمال ہوئی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی استعمال ہوئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاریں اتنی باریک باریک ہیں، اس کے رگوں، اس کی نرز اتنی باریک ہے کہ اس کی خالی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، آلات استعمال کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی اتنی ہے، سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی لمبائی اتنی ہے کہ اس کے نرز کو اگر ہم باہر نکالا جائے، پھر اس کو باہر نکال کر پھر سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا جائے، ایک دوسرے سے جوائن کرتے جائے، تو یہ اتنی لمبی ہوگی کہ پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگا سکتی ہے۔ اتنی وائرنگ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر استعمال فرمائی ہے۔ یہ کتنا بڑا نظام اللہ نے بنا دیا ہے، کتنا بڑا نظام ہے، جو اس کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے
इंसान कितना छोटा सा इंसान, इसकी बनावट को समझने के डॉक्टर्स साइंसदानों ने अपने लेबोरेटरी में, लैब में, कंप्यूटर्स के जरिए से तालीमी इदारों में दिन रात एक कर रहे हैं इसकी तफसीलात को समझने के लिए। मैं मुकम्मल तफसीलात नहीं समझ सके। ये छोटा सा ये इंसान जो मिट्टी से बना हुआ इंसान, जिसकी इब्तिदा एक पानी का कतरा है, इसकी तफसीलात को समझने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की, ये इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फी आफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखते, तुम्हें अपने अंदर ही में निशानियां दिखाई देंगी इतनी। फिर अल्लाह ताला ये इंसान के अंदर इतनी बड़ी नेमतें हैं, तो पूरी कायनात में अपने तख्लीक का क्या शाहकार पैदा किया होगा अल्लाह ने। बगैर तुम नहीं देखते, बगैर अमल तरौनहा, ये जो तुम्हारे ऊपर बगैर सुतून के ये आसमान खड़ा हुआ है। अफलम यंज़ुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज, तुम नहीं देखते तुम्हारे ऊपर जो आसमान है हमने इसको कैसे बनाया है, इसको कैसे मुज़य्यन किया है, नहीं है कोई रास्ता तुम्हारे इसमें से निकलने का। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन बहीज, हमने इसको ज़मीन को कैसे फैला दिया है और इसमें हम पहाड़ों की किले गाड़ी है और इसमें हर किस्म की अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ उगाई है। तब सिरत व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, इसमें हर रुजू करने वाले के लिए बसीरत और नसीहत है, इबरत हासिल करने वालों के लिए। क्या क्या नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतों का इंसान गौर करे तो वह हैरान रह जाता है, अल्लाह तेरी क्या कुदरत है, तेरी इतनी बड़ी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अंदर है, अल्लाह ने रखी है। अल्लाह ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा करने से पहले उसके सारी चीज़ों का बंदोबस्त फरमाया है। अल्लाह ने आसमान को बनाया है, आसमान सूरज को बनाया रोशनी देने के लिए, चांद को बनाया है, सितारों को बनाया और सारे आसमान को चमका दिया, फिर ज़मीन को बनाया है, फिर दरख्तों को बनाया है, पानी के निज़ाम को बनाया है। ये सारी चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। और इंसान को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने इंसान को अपने लिए बनाया है। सारी जहां को, सारी कायनात को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है, ये खूबसूरत ये पूरी सारी दुनिया को, और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को मेरी इबादत के लिए, मैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मेरी हुक्मों को माने, मेरी फरमाबरदारी करे, मेरी बात को माने। हम इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। ये सारी दुनिया इंसान के लिए पैदा हुई है, अल्लाह ने पैदा किया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कितनी नेमतों का हम खा रहे हैं और उसका दिया हुआ खा रहे हैं, कितनी नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रोटी पर गौर करें कि एक रोटी का लुक़मा जो हमारे मुंह में जा रहा है निवाला, वो एक रोटी बनने में, तैयार होने में कहाँ कहाँ क्या क्या अमल होता रहा होगा। एक गंदम का बीज था, किसी इंसान ने ज़मीन पर हाथ चलाया होगा, फिर वो गंदम के बीज को ज़मीन में डाला होगा, फिर उसको पानी दिया होगा, फिर परिंदे और जानवरों से उसकी हिफाजत की होगी, इस ज़मीन ने उस पर अमल किया कि उसके एक कॉपर को बाहर निकाला, कली को बाहर निकाला। ये अल्लाह का एक ख़ास कानून है, वरना मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा बीज ख़त्म ही हो जाता। मगर नहीं, अल्लाह की कुदरत थी कि एक छोटा सा बीज जिसके ऊपर कई किलो मिट्टी आ गई, और जो बोझ के अंदर दबा हुआ है, जो दबा हुआ उसकी मिट्टी को फाड़ते हुए वो ज़मीन के ऊपर आती है, बाहर आती है। ये इतनी नरम और नाजुक मामूली कली होती है कि एक चिड़िया से उचक लेती है, अगर चाहे तो बच्चा चाहे तो तोड़ भी सकता है, इतनी नरम और नाजुक होती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, वो ज़मीन की मिट्टी को फाड़ते हुए बाहर आती है, ज़मीन के ऊपर आती है। कि अल्लाह ताला के हुक्म से फिर सूरज की गर्मी, धूप की गर्मी फिर इस पर पहुँच रही है, अल्लाह के हुक्म से फिर चांद की रोशनी इस पर पड़ रही है, हवा अपने खुराक को पहुँचा रहा है, बादल पानी पहुँचा रहा है, फिर इस पर फूल लगते हैं, इसको फल लगते हैं। सूरज आया, उसकी गर्मी से उसमें जसावत बढ़ती है, जायका बेहतर होता है, सारी चीज़ें होती है। एक दाना डाले तो एक दाने से फिर अल्लाह ताला कई गुना, 700 गुना बढ़ के हमें उसमें वापस देते हैं। कितने मराहल से गुजर कर ये हमारे पास आती है रोटी, फिर इसको पीसा जाता है, गंदम के गोंदा जाता है, फिर इसको रोटी तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद इंसान उसको खाता है, और खाकर अल्लाह ताला को याद भी नहीं करता, अपना पेट तो भर लेता है।
अपना पेट भर लेता है, हमें अल्लाह ताला को याद नहीं करता। हमें तो चाहिए था कि हम उसका दिया हुआ खाते हैं तो हम इसके गीत गाते। अल्लाह का कितना करम है, मगर इंसान उसमें नाशुक्री करता है, उसकी नेमतों को खाता है फिर उसकी नाशुक्री करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुद इंसान मारा जाए इंसान जिसने कुफ्र किया, नाशुक्री की है। मिन अय्यि शैइन खलक़ा, सोच तुझे किस चीज़ से पैदा किया है। मिन नुत्फ़ा खलक़हु फ़क़द्दरा, एक नुत्फ़े से पैदा किया है, नुत्फ़े से अच्छा अंदाज़ा मुक़र्रर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इंसान को अपने कुदरत के करिश्मे दिखा दिए और इंसान के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त फरमा दिया। उसकी नेमतें, हम कितनी नेमतें खा रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदा बन के ज़िंदगी नहीं गुजारे। इसके मुकाबले कुत्ते को ले लीजिए, अपने मालिक से क्या लेता है वो। मालिक जब खाना खाता है तो बचा हुआ फेंक देता है, गोश्त की हड्डी फेंक देता है, सूखी हुई रोटी फेंक देता है। ना उसको अच्छी ग़िज़ा मिलती है, ना फल फ्रूट मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, ना कोई अच्छी चीज़ मिलती है, ना सोने के लिए लिहाफ कंबल होता है, ना फोम के गद्दे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन वो मालिक कितना वफादार होता है। इंसान मालिक बनकर क्या दे सकता है, क्या देता है, कुछ नहीं। वही कितना वफादार बन के ज़िंदगी गुजारता है वो मालिक का वो कुत्ता। तो जब मालिक सो जाता है तो सारी सारी रात पहरा देता है। फिर जब सर्दी होती है तो ना कंबल लिहाफ होता है, ना गर्मी में ना पंखा का बंदोबस्त होता है, कुछ नहीं, दर के नीचे जाके सो जाता है। एक कुत्ता इतना वफादार बनकर जिंदगी गुजारता है, एक रोटी के और एक हड्डी के लाज रखकर, एक फेंकी हुई हड्डी की लाज रखकर इतना वफादार बन के दिखाता है। और हम अल्लाह की कितनी नेमतें इस्तेमाल नहीं की, कितने इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिन मांगे अल्लाह ने हमें दिया है, बिन मांगे। अगर आँख ना देते तो हम उसका मुतालबा कर सकते थे, हमें ज़बान ना देते तो हम उसका अल्लाह से मुतालबा कर सकते थे। हम कुछ नहीं, बिन मांगे अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है हमें। कितने अच्छे अच्छे ग़िज़ाएँ खाते हैं हम, दस्तरख़्वान में हमारे कई किस्म के डिशेस होते हैं, किस्म के चीज़ें होते हैं हमारे पास। कितने कबाब, मछली, चिकन होते हैं, कई किस्म होते हैं, सूप, आइसक्रीम, जूस वगैरह वगैरह, कितने चीज़ें हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जो दोस्तों कितना कुत्ता एक छोटी रोटी के टुकड़े और हड्डी के पे इतना वफादार बनता है दोस्तों। पे हम अल्लाह के इतने नेमतें खा के पे हमें कितनी वफ़ा करने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह से कितनी वफ़ा की ज़रूरत है हमें। हाँ, अल्लाह से वफ़ा करने की दूर की बात, हाँ अल्लाह इतनी नेमतें खाकर हम 2 सजदे करने के लिए अल्लाह के सामने तैयार नहीं हैं। मस्जिद से अजान आवाज़ सुनाई देती है कि हम अल्लाह से इतना वफ़ा नहीं करते कि हम पहले मस्जिद घर से पैदल चलकर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, इतने भी हम वफ़ा नहीं करते हम अल्लाह से। शैतान एक सजदा से इनकार कर दिया तो उसको मरदूद कर दिया गया, तो हमेशा के लिए उसको दरबार से धुतकार दिया गया, निकाल दिया गया। इंसान दिन में कई सजदे का इनकार करता है, कई सजदे नहीं करता। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इंसान जो बेनमाजी आदमी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। हम अल्लाह की इतनी भी वफादारी करके नहीं दिखाते। एक कुत्ता तो एक अपने मालिक का पूरे सारी रात पहरा देते हुए रहता है, सिर्फ एक सूखी रोटी के लाज रख कर, फेंकी हुई हड्डी की लाज रख कर। हम अल्लाह की कितने नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिन मांगे अल्लाह ने हमें दिया है, फिर भी हम अल्लाह के वफादार नहीं बनते, जिंदगी नहीं करते, अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलते। हम कितनी नेमतों से नवाजा है अल्लाह ने, बिन मांगे इतनी नेमतें दी हैं। अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करें और शुक्र अदा करके अल्लाह के सामने हम अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह के फरमाबरदार बंदा बन के हम ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को समझने अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला जो हमारी नेमतें दी है उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।